ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਚੱਲਣੋਂ ਫਿਰਨੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੱਟੂ ਜੀ UK ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਪ ਵੀ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਮ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਹੋਪ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਬਡੋਮੀਨਲ TB ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੋਤੀ। Praise the Lord to all who are watching Glory TV. My name is Jyoti Kumar and I'm from Birmingham. I am Arshad and late Venus Subrai's daughter. Couple of weeks ago, my sister-in-law from India told me about Sanji and told me to actually contact him because he's in UK. So as a family we contacted Sanji and we spoke to him and we asked Sanji to come down to pray with us, to have a small prayer meeting at home. So on the 14th of July was the first time we actually met Sanji. So we give praise and glory to God for that. It's been approximately 3 weeks and we've actually learned how to be obedient to God. We've learned how to pray, how to walk with God spiritually. So we're thankful to God for that. And I'm also grateful that as a family, we've started to pray regularly, to have prayer meetings at home as a family. So thank you. And also, within 3 weeks, I didn't realise that I would be sitting here today to let everybody know my small testimony. So this is all to do with God, and I thank you, Jesus, for that.
And I know that my blessings and my family's blessings, more blessings will be coming soon. In Jesus' name, amen. आमीन आमीन। और जब मैं बीमार हुई, जब बीमारी के बाद फिर संजी हमारे घर में गए, तो तब मेरी इच्छा थी कि मतलब मैं उनको यहाँ पे यूके पे में जो हमारा घर है वो यहाँ पे आए। तो हम लेस्टर में ओल्ड सेंट चर्च जाते हैं और एक ही वीक हुआ था मुझे जाते हुए। तो मैंने संजी से फ़ोन पे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे पास आएँ और प्रभु का वचन यहाँ भी लोगों में शेयर करें। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, आप जाना और जो पास्टर जी हैं उनसे बात करना। तो मैंने हमारे चर्च के जो पास्टर है, पास्टर सनी जॉर्ज, उनसे बात की और प्रभु ने उनकी आत्मा को गवाही की और उन्होंने मुझे वो लेटर बिना झिझक दे दी। और फिर हमने वो लेटर से संजी को मैंने उनको बताया कि हमें लेटर मिल गया और पेपर्स भेजे, और आज प्रभु का दास वो हमारे बीच में है और प्रभु उनको बहुत सामर्थ्य से यूज़ कर रहे हैं और वो आज हमारे बीच में स्टूडियो में है हमारे साथ। तो आइए हम मिलते हैं संत सलिंदर मट्टू जी से, जो कि मुंबई से यहाँ हमारे पास आए हैं। सभी यूके वासियों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं संत सलिंदर मट्टू के नाम से मुझे लोग पुकारते हैं। बॉम्बे में रहता हूँ। पैदाइश मेरी पंजाब की है। जलंधर के पास हमारा एक छोटा सा गांव है सराय खास, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और प्रभु का संत बनने से पहले जो मेरा जीवन था मैं वो आपसे शेयर करूँगा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, ग्लोरी टीवी का शुक्रगुजार हूँ, इन फैमिलियों का शुक्रगुजार हूँ, परमेश्वर ने जिनके द्वारा ये कार्य किया और अपने दास को इंडिया से यूके यहाँ लेकर आए और प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करते, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप क्रिश्चियन थे, चर्च में एल्डर थे पिताजी, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं था जैसा परमेश्वर को जीवन चाहिए। शायद आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी शायद क्रिश्चियन हो सकते हो, मसीही हो सकते हो, परंतु हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जीवन उस प्रकार का है जैसा प्रभु को चाहिए। हमारे पिताजी का जीवन ऐसा नहीं था। वह ट्रैवलिंग एजेंट का काम करते थे, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था, लेकिन अनाज्ञाकारी की वजह से धीरे धीरे उनका बिजनेस फ्लॉप होता गया। आज से 40 साल पहले उनका कोई 20 लाख रुपया लेकर बॉम्बे से भाग गया और उनको 20 लाख रुपया उतारने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और डे बाय डे वह कमज़ोर हो रहे थे आर्थिक लेवल पर। और ऐसे जीवन में हमारे दिन आए कि हम खाने के लिए भी मोहताज थे। और फिर जब हम क्रिश्चियन होते हैं, मसीही नहीं होते, विश्वास दृढ़ नहीं होता, तो हम भटक जाते हैं। हमारा परिवार भटका, हमें लोग ज्योतिषियों के बारे में बताने लगे, बाबाओं के बारे में बताने लगे। तो मैं जब 12 साल का था तब किसी बाबा ने बोल दिया कि आपके बेटे के ऊपर पहरा है किसी बुजुर्ग का। हमारे वहाँ इंडिया में बहुत लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तो हम जैसे किसी के पास जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो एक बाबा ऐसे मिले जिन्होंने हमें चैलेंज कर दिया कि आने वाले 12 दिन के बाद 13वें दिन आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी यदि आप अपने घर में दिया नहीं जलाएंगे। आपके बुजुर्ग है पीछे से, उनकी पूजा करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने डर के मारे दिया जलाना शुरू किया। एक दिन मैंने दिया जलाया और मैंने जब घर में प्रसाद बांट रहा था तो मेरी छोटी सिस्टर, उनका नाम सुनीता, उन्होंने कहा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी। तो मेरी मदर बोलते, बेटा देख, हम लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हो चुके हैं, लोग तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, मैं नहीं चाहती कि तू इस चीज़ को ग्रहण करे। तो मैंने कहा यदि मेरे बाप का जीवन बच सकता है तो मैं ये करूँगा। लेकिन मैंने एक दिन वो दिया जलाया और दूसरे दिन जब उन्होंने प्रसाद नहीं खाया तो मैंने भी दिया उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार हमारा जीवन उतार चढ़ाव में चलता रहा। मेरी कोशिश थी कि मेरे पिताजी बच जाएं, लेकिन 13वें दिन उनकी डेथ हुई, क्योंकि शैतान भी जो कहता है वो पूरा कर देता है। शैतान भी भविष्यवाणियाँ करता है, शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार करता है। इस प्रकार मेरा जीवन शैतान की ओर जाने लगा और मैं फिर मेरे जीवन में एक मुलाकात हुई एक आदमी के साथ जो हमारे उधर पंजाब में है। उन्होंने काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की है। मैंने उनके साथ गुरु धारणा की। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने के बावजूद मैं ज्योतिष विद्या, वास्तुशास्त्र विद्या और ये सिद्धियाँ प्राप्त करने लगा, देवी देवताओं के पीछे भागने लगा। तब मैंने उन दिनों में 5 साल कड़ी तपस्या की और मैंने बहुत सारे देवताओं को सिद्ध किया। ऐसा सिद्ध किया कि मैं उनसे बात करता था। एक पैर पे मैं 40-40 रात खड़ा होता था, 500 मोतियों की माला घुमा लिया करता था। लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने के बाद मैं उनसे काम लेने लगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे, बाबा जी के नाम से मुझे पुकारा जाता था और मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया। क्रिश्चियन फैमिली के बीच में पैदा होने के बावजूद मैं एक बाबा बन गया।
मट्टू बाबा बुलाते थे मुझे। और उस समय मैंने बहुत सारे भगवानों को सिद्ध किया, मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको, देवी देवताओं को सिद्ध किया। और फिर मैं संडे की संडे मेरे पास लोग आने लगे और मैं बैठकर उनके बारे में बातें करता था और उनके लिए जो भी मुझे आता था करना वो मैं किया करता था। ऐसा जीवन चलते चलते हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं अपना गांव छोड़कर शहर में आया, जलंधर शहर में मैं करने लगा ये सब कुछ। और एक मेरे जीवन में बचपन से ही गायकी का बहुत शौक़ था और मैंने क्लासिकल संगीत सीखा था। तब मैं जागरण, गिद्दा, भंगड़ा, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करता था साथ में और बहुत बड़ा तिलक लगाया करता था माथे के ऊपर इस प्रकार और जागरण किया करता था। पंजाब में मैंने उस समय एक एल्बम भी निकाली देवी के नाम की। तो मुझे प्रभु का बिल्कुल पता नहीं था और मैं जीवित परमेश्वर से बिल्कुल दूर चला गया और मुझे नहीं पता था कि खुदावंद मुझे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में जब मेरे घर पे एक ऐसा हादसा हुआ। तब मेरी बहन का लड़का, जो मेरी मिसेज जो है वो बॉम्बे के थे, मेरी शादी बॉम्बे में हुई, वो क्रिश्चियन फैमिली से थे, CPM से थे। तो जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने मुझे देखा कि लोग मेरे पैर छूते हैं, ऐसे ऐसे मेरे पास आते, बाबा जी पुकारते हैं। उनको बड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने मुझे बाइबल दी मेरे हाथ में और मैंने बाइबल पकड़ी और उठाकर फेंक दी। मैंने कहा मैं किसी यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी सिद्धियाँ हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे किसी यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे जीजो, मेरे प्रभु के लोगों, आज ये प्रभु का दास कैसे बना। ये नाचीज इंसान जो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, एक सिद्ध पुरुष हो गया, देवी देवताओं को सिद्ध करने के बाद लोगों के काम करने लगा। लेकिन जब मेरी वाइफ बॉम्बे में आए और तब उस समय मेरी सिस्टर है, एक बड़े सिस्टर, जो मुझे बार बार इस रास्ते पे लेकर जाते थे, बार बार किसी ज्योतिषी के पास, किसी बाबा के पास लेके जाते और वो मुझे मैं बार बार कोशिश करता हूँ निकलने की, वो बार बार मुझे वहीं पे ले जाते हैं और मुझे कहते हैं मैं चाहती हूँ कि यदि तुम उनकी पूजा करो, सेवा करो तो तुम धनवान हो सकते हो, मैं चाहती हूँ मेरा खानदान धनवान हो। सो वो मेरा भला करते हुए मुझे इस मार्ग पर ले जाते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने अपने बेटे को मेरी वाइफ के पास भेजने के लिए कहा। मुझे बोलते हैं आप मेरे बेटे को बॉम्बे ले जाओ, जलंधर में वो बहुत नशे करता है। सो इस प्रकार जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मैं और मिसिज, मैं तो इनकार कर चुका था, लेकिन मेरी मिसिज बोलते कि ठीक है अगर इन्होंने ऐसे कहा है तो हम लेके आते हैं। तो हम अपनी सिस्टर के बेटे को जलंधर से बॉम्बे लेकर आए और बॉम्बे में जब वो रहने लगा, काफ़ी देर के बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी उनके साथ उनका अफेयर हुआ और उन्होंने शादी करने की प्लानिंग की। जब उनकी प्लानिंग हुई तब मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम्हारा लड़का मेरी साली के साथ शादी करने वाला है, ये गलत है। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि तब मैं प्रभु में नहीं था, तब मैं एक बाबा था, तब भी मैंने भविष्यवाणी कर दी। मैंने कहा या तो फिर तेरा लड़का मर जाएगा, या उनकी लड़की मर जाएगी, दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। और उन्होंने नहीं सुनी, शायद उसको ये लग रहा था कि मैं उसका मामा हूँ, और वो उन्होंने इस करके मेरी बात को सुना अनसुना किया और उन्होंने शादी की। फिर मैं पंजाब में था, पंजाब में उस समय मैं पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट का यूथ का प्रेसिडेंट था और साथ ही साथ मैं अपना काम करता था, ईसाई भी कहलाता था और बाबा भी था। दो प्रकार का जीवन जी रहा था, परमेश्वर से दूर था। उस समय बॉम्बे में एक हादसा हुआ। मेरी जो सिस्टर का बेटा है, ये अपने ससुराल में था, रात को इनके घर में गैस लीकेज हुई और ये रात को अपने रूम में सो रहा था। सुबह उठा, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, प्रभु से बहुत दूर थे वो लोग भी। और वो टॉयलेट में जाने से पहले उसने मुंह में सिगरेट रखा, लाइटर जलाया, जैसे उसने आग जलाई उसको ब्लास्ट हुआ, 100% बर्न हुआ। और वो अंडरवेयर में था, बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, बॉडी को गैस चिटकी हुई थी। इतना 100% बर्न हुआ कि वो बाहर जाने की बजाय रूम में चला गया। और जब वो रूम में गया तो रूम के अंदर जो फ़ैन था चल रहा था, उस फैन ने गैस इकट्ठी कर रखी थी, जो शायद टेरेस के साथ जितनी भी गैस थी वो ब्लास्ट हुई। और वहाँ उसकी 1.5 साल की बेटी थी, वो 1.5 साल की बेटी जैसे सो रही थी वैसे बंद हो गई, और जो उसकी सास थी वो जैसे वो सो रही थी वो भी बंद हुई। उस समय हम पंजाब में थे, हमें ये खबर मिली। मैं अपनी सिस्टर को, अपने जीजा को लेकर बॉम्बे आया। बहुत जदोजहद के बावजूद बॉम्बे पहुँचे। जब हमने देखा मेरी सिस्टर का लड़का 100% बंद था। और उस समय मेरी सिस्टर हाथ जोड़कर मुझे रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे भाई तूने अपनी पूजा पाठ से बहुत सारे लोगों को जीवन दान दिया है, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे बेटे को बचा सकता है। मेरे पास जितनी सिद्धियाँ थी मैंने उनकी कोशिश की। पहले मैंने हनुमान को याद किया, जो भी मैं उनका करता था उसको मैंने ड्यूटी लगाई कि इसकी खाट के बगल में खड़े रहना और इसके प्राण नहीं निकलने चाहिए। काफ़ी घंटों के बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया तो मैंने नार्सिंग की ड्यूटी लगा दी। इस प्रकार जितने भी मेरी शक्तियाँ थी मैं उनको ट्राई करता गया। लेकिन एंड मोमेंट क्या हुआ, वो लड़का ख़त्म हुआ
उस दिन में 3 लोगों की डेथ हुई और बॉम्बे में हम उनको दफनाकर पंजाब में वापस आए। सो मेरे भाई और बहनों और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी जो टेस्टिमनी वो 8 घंटे की है। मैं 8 घंटे का काम 2 घंटे में 1 घंटे में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरी गवाही सुने। सो इस प्रकार देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हुए, सिद्धियाँ प्राप्त करते हुए मैं जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर जब हम पंजाब में वापस गए, फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे मेरी वो सिस्टर फिर किसी उसी बाबा के पास गई और उसने कहा कि जो कुछ भी तेरे बेटे के साथ हुआ है वो तेरे भाई को मालूम था, वो बचा सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं की, उसकी गलती से कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया, उसकी गलती से हुआ है। सो मुझे उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, ये सारी बातें मुझे मेरे रिश्तेदारों से मालूम पड़ने लगी। धीरे धीरे मैं कमज़ोर पड़ने लगा और मैं बहुत निराश हुआ। एक दिन मैं मरने पर था। मैंने अपने आप को मारने के लिए अपने घर में फ़ैन के साथ एक रस्सी बांधी और गले में डालने से पहले मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि जिस बहन की सांसों से मैं ज़िंदा रहता था, जब वो खड़ा करती है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, जब वो बैठने को बोलती है तो मैं बैठ जाता हूँ। मेरा और उसका इतना प्यार था, आज उसी ने मुझे ऐसे कलंकित कर दिया है। मैं जीना नहीं चाहूँगा। उस समय मेरे जी जो मेरी वाइफ बॉम्बे में थे, वह कॉल सेंटर में जॉब करते थे। बेटा मेरे पास था, एक ही बेटा है हमारे पास। तो मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बदनाम कर दिया है। तो उस दिन मैंने मरने से पहले अपनी वाइफ को ये कहा कि मैं तेरे बेटे को अपनी भाभी के पास छोड़कर जाता हूँ, तो आकर अपने बेटे को ले लेना। तो वो फ़ोन पे काफ़ी 2-3 घंटे बात होने के बाद वो रोने लगे, मैं भी रो रहा था। और जैसे मैंने रस्सी उठाई, मैं अपने गले में डालने के लिए हाथ में पकड़ा और मुझे एक कॉल आई। वो कॉल मेरी गांव से थी। मेरी मौसी के लड़के ने मुझे कहा, मट्टू तू क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं मरने जा रहा हूँ। तो उसने सोचा शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। जब हम ऐसे समय पर चले जाते हैं, यहाँ हमें कोई मार्ग नहीं मिलता, उसी समय एक रास्ता है, उसी समय एक नाम है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो द्वार खोल देता है। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने मरने जा रहा था तब मुझे वो कॉल आई। तो मुझे उसने कहा ठीक है मर जाना, लेकिन मर बाद में जाना। आज हमारे घर में, हमारे गांव में संत सुंदरलाल जी आए हैं, उनकी प्रार्थना है और वो प्रार्थना अटेंड कर ले। तो मेरे भी मन में विचार उठा, मरना तो है ही, फिर मैं क्यों ना वचन सुन लूँ, पता नहीं प्रभु की क्या योजना है। लेकिन जैसे ही मैंने रस्सी गले में डालने की कोशिश की, तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, देख बेशक तूने बहुत सारे देवी देवताओं को सिद्ध किया है, बेशक तूने अपना जीवन उनके पीछे व्यतीत कर दिया, लेकिन मैं वो जीवित परमेश्वर हूँ, मैं वो नाम हूँ जिसने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिए हैं। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। सो मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, वो दिन मेरा परमेश्वर के पास निकट जाने का दिन था। जैसे मैं अपने गांव अपने बेटे को लिया और गांव चला गया, वहाँ संत सुंदरलाल जी वचन सुना रहे थे। संत सुंदरलाल जी शायद आप मिल चुके हैं, लास्ट मंथ वो इंडिया से यहाँ आए थे, आपने उनकी गवाही भी सुनी होगी। संत सुंदरलाल के होठों से वचन निकला, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, अब्राहम के बाद इसहाक को आशीष किया, इसहाक के बाद याकूब को आशीष किया, याकूब के बाद यूसुफ को आशीष किया। सो यूसुफ को परमेश्वर ने वरदान दिया सपनों के अर्थ बताना। तो मैं उस 400-500 लोगों की गैदरिंग थी, मैं उसमें बैठकर रो रहा था। मैंने कहा यीशु मसीह, यदि आप जीवित परमेश्वर हैं तो मुझे ये वरदान दे सकते हैं। मुझे खुदावंद ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें जो कहा गया तू वो कर। मैंने कहा प्रभु, मैं बाबा था, लोग आके मेरे पैर छूते थे, मैं बड़े बड़े चमत्कार कर दिया करता था, लेकिन आज मैं आपके चरणों में आ चुका हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आवाज़ देकर कहा, देख मैं वो नाम हूँ जिसे तांत्रिकों का तांत्रिक और बाबाओं का बाबा कहते हैं, पृथ्वी का सृजनहार हूँ। यदि तुम विश्वास करो तो मेरी आवाज़ को सुनो, जो मैं कहता हूँ वो करना शुरू कर दो, देखना मार्ग तेरे लिए खुलते जाएंगे। ये 2007 की बात है, शायद 2006 की बात है। 2006 में जैसे मैंने ये प्रार्थना अटेंड की, मैं अपने घर पे आया, मेरे मन में एक सुकून था, एक शांति थी। फिर मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन किया, मैंने बोला केजिया मुझे बताओ मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे बात हुई। उन्होंने कहा डेनिस के पापा, आप डेनिस को लो और बॉम्बे वापस आ जाओ, अब पंजाब में आपका कोई ना रहा। और मेरे अजीजों, जब मैं बॉम्बे गया, क्योंकि मैं सिंगर था, क्लासिकल संगीत सीखा हूँ, फिर मेरे मन में एक थी कि मैं चलो बॉम्बे में म्यूज़िक सिखाऊंगा लोगों को, साथ ही साथ प्रार्थना किया करूंगा। मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि बचपन से मेरे मन में एक विचार था, मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूं। मैंने अभी मुझे डर था, इतनी सिद्धियां प्राप्त की है, इतने देवी देवताओं को सिद्ध किया है, ये मेरा पीछा करेंगे। तो मैं डर के मारे प्रार्थना करने लगा,
और संडे वर्शिप अटेंड कर रहा था। वहाँ बॉम्बे में एक पास्टर है, पास्टर अब्राहम, उनकी कलीसिया में मैं जाने लगा और उन दिनों में उनके पास बाइबल स्टडी हो रही थी। तो उन्होंने मेरी मिसेज को कहा, मुझे कहा कि मट्टू भाई आप बाइबल स्टडी करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पास्टर नहीं बनूंगा, मुझे बाइबल स्टडी का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन फिर हमने घर पे प्लानिंग की तो मिसेज ने कहा, देखिए आप पास्टर मत बनिए, परंतु आप बाइबल स्टडी कर लीजिए, नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैंने भी कहा ठीक है, ये प्रभु की योजना थी। मैंने जैसे ठीक कहा, बाइबल स्टडी शुरू हो गई। मैं बाइबल का ज्ञान लेने लगा और वचन पढ़ने लगा। उन दिनों में मैं डरते हुए 3 घंटे की प्रार्थना करता था, क्योंकि मुझे पता था जितने देवी देवताओं को सिद्ध किया है, ये सारी शक्तियाँ मेरा पीछा करेगी, ये मुझे मार डालेगी, और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाऊँगा। मैंने जैसे आपको कहा कि 8 घंटे की टेस्टामनी मैं कोशिश करूँगा आधे घंटे में 1 घंटे में पूरी करूँ। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आते समय, जैसे हमें किसी ने कहा था, हमारे घरों में मृत्यु होने लगी थी टाइम टू टाइम। पहले हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, फिर हमारी मदर की मृत्यु हुई, फिर मेरे भाई की मृत्यु हुई। तो इन चीज़ों को लेकर मैं डरा हुआ था कि मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जब मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को दिया, मैं 3 घंटे की प्रार्थना करने लगा। बाइबल स्टडी करते करते रात को मैं 3 घंटे की प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे मैं प्रभु से बातें करने लगा। मेरे अजीजों, जब मैं प्रभु से बातें करने लगा, शायद आज आप भी प्रार्थना करते होंगे। कोई 5 मिनट की प्रार्थना करता है, कोई 10 मिनट की प्रार्थना करता है। मैं 3 घंटे की प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने हिसाब से सोच रहा था कि अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं समय का दशमांश दे रहा हूँ। तो जब मैं प्रार्थना 3 घंटे की, मेरी 1 साल की प्रार्थना हुई, तो मैं एक दिन प्रभु से बात करने लगा। मैंने कहा, प्रभु आपके वचन में लिखा है आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद हैं, आप उनके साथ रहते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? तो मुझे उत्तर मिला, परमेश्वर ने कहा, ना मैं अब्राहम के साथ था, ना मैं इसहाक के साथ था, ना मैं याकूब के साथ था। मैं बड़ा ही हैरान हुआ। मैंने कहा, खुदावंद आपके वचन में लिखा है आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदावंद हैं। प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, ऐ नाचीज इंसान, मैं उन तीनों के साथ नहीं था, बल्कि वह तीनों मेरे साथ थे। तू देख तू किसके साथ रहता है। मैंने कहा, खुदावंद मैं भी आपके साथ रहता हूँ, मैं 3 घंटे की प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे उत्तर देकर कहा, 3 घंटे की प्रार्थना से तू जीवित परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और जब मुझे खुदावंद ने ये कहा 3 घंटे की प्रार्थना से तू मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, और प्रभु ने मुझे याद दिलाया मेरा पुराना जीवन। प्रभु ने कहा, याद कर, जब तुम बाबा कहलाते थे, जब तुम देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, तब तुम 7-7 घंटे प्रार्थना का अपनी भक्ति कर लेते थे। एक पैर पे खड़ा होकर तू 40-40 दिन भक्ति करता था। आज तू जीवित परमेश्वर की खोज कर रहा है, तो सिर्फ 3 घंटे में। तब मैंने प्रभु को कहा, बताइए प्रभु मुझे क्या करना होगा? मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के लोगों, यदि आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना करते समय पूछिए प्रभु को, प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं? जब मैंने कहा, खुदा ने मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तब प्रभु ने कहा, अपनी प्रार्थना बढ़ा दे, मैं चाहता हूं तो 7 घंटे प्रार्थना करे। मैंने कहा, खुदावन मैं 7 घंटे नहीं, मैं 8 घंटे प्रार्थना करूंगा। सो मेरे प्रभु के धर्मी जनों, जब खुदावंद ने अपने इस नाचीज दास की प्रार्थना को 8 घंटे किया, मैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे रात भर प्रभु से बातें करता था। बहुत अच्छा लगता था। उस समय मुझे परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे, प्रभु मुझे मार्ग दिखाने लगे। प्रभु मुझे बार बार बता रहे थे कि मैं तुम्हें ये करूँगा, मैं तुम्हें इस समय ये दूंगा। प्रभु ने मुझे समय समय सारी योजनाएं बता दी। प्रभु ने मुझे कहा 2011 और 12 तेरा इंडिया में होगा, तो यहाँ तक मेरा काम कर सके, सुसमाचार फैला सके, फैलाना। प्रभु ने कहा 2013 मैं तुझे इंडिया से बाहर ले जाऊंगा। और देखो मेरे खुदावंद का चमत्कार, मुझे परमेश्वर ने कहा 2012 में मैं तुझे जलंधर में एक छोटा सा चर्च दूंगा। 2015 में प्रभु ने मुझे कहा मैं तेरे लिए एक प्रे टावर बना दूंगा। जैसे मुझसे प्रभु बात करने लगे, एक दिन की बात है 2010 को रात भर प्रार्थना में बैठने के बाद सुबह 3:20 मैंने देखा कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ 6th फ्लोर पे मैं रहता हूँ, हमारी जो छत थी, जो टेरेस था, वो खुल चुका था और आकाश खुला है और आकाश से एक आग उतर रही है और वह आग से मेरा जो घर था वो भर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पुकार कर कहा, मैंने तुझे पास्टर नहीं प्रॉफिट कहा है, मैंने तुझे प्रॉफिट बना दिया है, आज के बाद अपनी पहचान को याद रखना। तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ प्रॉफिट क्या होते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने प्रॉफिट इसलिए कहा, आज के बाद जो मैं तुझे दूंगा वो मेरे लोगों तक पहुँचा देना। सो इस प्रकार परमेश्वर अपने दास को सिद्ध करते गए। जैसे कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को 99 ईयर में कहा,
अब्राहम मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसी प्रकार प्रभु ने मुझे सिद्ध होने के बारे में कहा, और जब प्रभु ने मुझे कहा सिद्ध होने के लिए, तो प्रभु ने कहा मैं तुझे इस प्रकार इस्तेमाल करूँगा। 2011 से प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले, सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, इससे पहले 6 मंथ पहले मुझे परमेश्वर ने कहा था कि आज के बाद तू लोगों को उनके सपनों के अर्थ बताएगा। जब मुझे ये वरदान मिला, तब मैं अपने घुटनों पर बैठकर कम से कम नहीं तो 2 घंटे तक रोता रहा, और मैंने कहा खुदावन ये मनुष्य के वश की बात नहीं है, इतना बड़ा वरदान। प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो इस प्रकार जब खुदावन ने मुझे दर्शन का वरदान दिया, फिर 2010 में प्रभु ने मुझसे बात की। सुबह 3:20 का समय था। परमेश्वर ने मुझे सारी योजनाएं बता दी, और 2011 में खुदावंद अपने इस नाचीज दास को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मैं बॉम्बे में रहता हूं, अंधेरी ईस्ट में। बॉम्बे से लेकर न्यू बॉम्बे तक प्रभु मुझे लेकर गए, और न्यू बॉम्बे से फिर मैं अहमदनगर चला गया, और अहमदनगर बड़े ही सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल किया बहुत सारे लोगों के सपनों के अर्थ बताने के लिए। जब नया नया वरदान था, तब मुझे भी महसूस होता था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रभु सपनों के अर्थ बताते गए, लोगों को सपनों के अर्थ मिलने लगे, मुझे सामर्थ्य मिलने लगा, और प्रभु अपने इस दास को इस्तेमाल करने लगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमारे पास कुछ वीडियो क्लिपिंग्स भी हैं जब प्रभु ने अपने दास को बहुत सामर्थ्य से यूज़ किया, तो हम वो वीडियो क्लिपिंग देखेंगे। Praise the Lord. प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, खुदावंद समय पूरा हुआ। आज का प्रभु इस वर्षीय आराधना का समय आपने जो पूरा किया है खुदावंद, ओ मेरे परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हालेलुया। ओ खुदावंद आपके दास को आपके हाथ में देते हैं। आज पिता आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद सारे इंतजाम आपकी ओर से हुए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये सारी वर्षीय आराधना को आपके हाथ में देते हैं, शुरू से लेके अंत तक अपने हाथ में संभालिए। ओ प्यारे परमेश्वर, आज बहुत सारी रूहें बचाई जाए, पूरा संघर्ष नगर, पूरा चांदीवली महल एरिया बचाया जाए मेरे प्रभु। हम घटते जाए और आप बढ़ते जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आपके जीवन में झूठ शब्द नहीं रहना चाहिए। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आप दूसरी अन्य जातियों के लोगों की तरह जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, चोरी कर लेते हो। कोई बिजली की चोरी करे जा रहा है, कोई पैसे की चोरी करे जा रहा है, कोई किसी वस्तु की चोरी करे जा रहा है। प्रार्थना बड़ी करते हैं, बंदगियां बड़ी अटेंड करते हैं, कुछ नहीं हो सकता जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। मूसा जब अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता है, जब वो मिलाप के तंबू में बैठ जाता है, तब वो यीशु मसीह को नहीं अपने आप को देखता है। आप और मैं जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा आपको आपकी बुराइयां मालूम पड़ेगी। जब अपने आप को सुधारोगे, तब प्रभु यीशु मसीह के दीदार कर पाओगे। बोलो प्रभु यीशु की। जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ जाए ना, उसकी आने वाली पुश्तें सुधर जाती है जी। आपको याद है ये वचन, आज्ञाकारी की आशीषें और अन आज्ञाकारी का श्राप। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं उनके ऊपर प्रभु की आशीष पड़ेगी। यदि अनाज्ञाकारी करेंगे तो उसका श्राप उतर जाएगा, क्योंकि वह कहता है जिन्हें वह प्रेम करता है उन्हें वो छड़ी लगाता है। और जो दुष्ट लोग फल रहे हैं, इसका मतलब प्रभु ने छड़ी नहीं लगाना। यदि आपको छड़ी लग रही है तो प्रभु को धन्यवाद देते रहिए और प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए। वचन समाप्त करेंगे, पढ़िए जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। आमने सामने बात करता था जी। आज भी वो परमेश्वर अपने दासों के आमने सामने बात करता है। किसी को छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर है। यदि उसकी उपस्थिति में बैठ जाएंगे तो हमें किसी मनुष्य के डरने की
जरूरत नहीं है। यहोवा आमने सामने बात करता है। यदि आपको और मुझे परमेश्वर से आमने सामने बात करनी है, यदि कोई एक जन भी हाथ खड़ा करे, मैं आने वाले 2-3 महीने के बाद आपको मिलूंगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 3 महीने के बाद कहां हो सकते हैं। एक जन भी हाथ खड़ा करके दिखाए कि वो 3 घंटे एवरीडे प्रार्थना करेगा, मैं लिख वचन के देता बारे में हूं। प्रभु के खाली दास हमारे साथ थोड़ा सा वचन शेयर करें। स्वागत करते हैं आपका फिर से ग्लोरी टीवी पर। प्रभु के दास संत सलिंदर मट्टू जब हमारे साथ प्रभु का वचन शेयर करेंगे। संत जी, वचन शेयर करने से पहले मैं अपनी गवाही को क्लोज करूंगा। फिर अहमदनगर से प्रभु मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में अभी हमारे पास जलंधर में एक चर्च है, और जलंधर से लुधियाना में हमारे पास सेवकाई है। चंडीगढ़, मोहाली, खरड़ में हमारे पास सेवकाई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हमारे पास सेवकाई है। खुदावंद अपने दास को टेलीफोन के द्वारा बहुत इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन प्रार्थना करता हूं, और इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, मलेशिया, इस प्रकार हम प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को HIV से छुटकारा मिल चुका है। आप चाहिए तो हमारे YouTube पे हमें चेक कर सकते हैं। हमारी सेवकाई को प्रॉफिट सलिंदर मट्टू डाल लीजिए, चाहिए तो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री डालिए, तो आपको पता चलेगा। खुदावंद ने मेरा जीवन बदला है। मैं चाहूँगा परमेश्वर आपका जीवन बदले, क्योंकि यदि प्रभु अपने दास को UK में लेकर आए हैं इस ग्लोरी टीवी के द्वारा, आज परमेश्वर अपने दास की गवाही को आपके घर तक लेकर आए हैं। मैं इस चीज़ के बारे में श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया। मेरे जैसे बाबा को, जिसने सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिसने देवी देवता को सिद्ध किया था, उसका जीवन बदल दिया। खुदावंद आज आपका जीवन बदलना चाहते हैं। आज का समय आपके लिए है, क्योंकि उस दिन मेरे लिए था और मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। आज देखते हैं कौन अपना जीवन बदलना चाहता है, कौन है जो मेरे यीशु मसीह की खोज करता है। आज हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि समय हमारे पास कम है, इसीलिए मैं अपनी पूरी गवाही नहीं बता सकता हूँ। तो आप मेरी गवाही सुनने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री को परमेश्वर बड़े ही सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे 2015 तक बहुत सारी योजनाएं दी हैं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मेरा खुदावंद